Good morning, student. This chapter is for class 9 and the chapter belongs to the physics. So the first chapter is motion. Okay. So let us talk about what do you mean by the motion. A motion is like, a body said to be in state of motion when its position changes with respect to a reference point और फिर टाइम. देखो reference point क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. This is supposed to be, I am giving you some example. If you are sitting in the classroom, okay, and what's your position with respect to the whiteboard, so that whiteboard is the reference point with respect to you. Okay, so तो हम उसे reference point कहते हैं. तो अब मोशन क्या हो गया कि जब बॉडी मूव करता है विथ पोजिशन टू इट्स रेफरेंस पॉइंट या फिर टाइम के साथ वो उसका जो पोजीशन रहता है वो चेंज करता है, तो उसे हम मोशन कहते हैं. सपोज टू बी आप कोई एक बॉल है, जैसे कि यहाँ पे ए पे है, फिर कुछ समय बाद वो बी पे जाता है, तो उसे हम कहेंगे कि वो बॉल किस में है, मोशन में है. ठीक है ना. और रेस्ट किसे कहेंगे, जस्ट अपोजिट ऑफ मोशन. लाइक अ बॉडी सेड टू बी इन रेस्ट व्हेन इट्स पोजीशन does not change with respect to reference point and time. Okay, chalo. And basically motion can be of different type. We all know that the first one is circular motion. It means like body revolves around circle, so that would be circular motion. Like this circle and the body revolves like this, so that would be a circular motion. But in case of uniform circular motion, what happened, the speed is constant, so we call it uniform circular motion. As we all know that the perimeter of circle is 2 pi r with respect to time, so that would be circular motion. Okay, 2 pi r upon t equals to circular motion. Okay, so now let us talk about the linear motion. Of course, in a straight line, when a body moves in a straight line or a path is said to be the linear motion. Let us go forward. Like third one is oscillatory or vibratory motion. ये क्या होता है, when body moves to and fro with respect to its origin or mean point. Okay, suppose to be ये पेंडुलम है, मैंने पेंडुलम का एग्जांपल दिया. एक बॉडी कभी यहाँ आ रहा है, एक कभी यहाँ जा रहा है, तो दिस इज द मीन पोजीशन. ओके, सो दैट वुड बी अ ऑसिलेटरी मोशन और वाइब्रेटरी मोशन. Now go forward. The thing is like physical quantity. What do you mean with the physical quantity? Listen, the quantity which can be measured is called physical quantity. देखो हर एक चीज का मेजर करने के लिए क्या एक क्वांटिटी होती है, उसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं. जैसे लेंथ को मेजर करने के लिए, मास को मेजर करने के लिए, टाइम को मेजर करने के लिए सेकंड होता है, स्पीड को करते हैं, वेलोसिटी को करते हैं, तो इसे ही हम कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी. ठीक है ना. और ये क्या होता है, ये दो टाइप के होते हैं. एक होता है स्केलर क्वांटिटी, एक होता है वेक्टर क्वांटिटी. सो लेट अस टॉक अबाउट व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी एज वेल एज वेक्टर क्वांटिटी. So scalar quantity is the quantity which can be measured by only magnitude. देखो magnitude मतलब एक वैल्यू जो फिजिकल वैल्यू होता है उसे मैग्नीट्यूड कहा जाता है. लाइक यू कैन टेक द एग्जांपल लाइक डिस्टेंस, स्पीड, मास, टेम्परेचर, लेंथ. दीज ऑल आर द स्केलर क्वांटिटी. क्योंकि इससे डायरेक्शन का कोई पता नहीं चलता. लाइक यू कैन से लाइक इफ योर वेट इज सपोज टू बी 60 kg, so it doesn't mean like it doesn't sense any direction, so that's why it is a scalar quantity. Like speed बोलते हैं ना कि 40 की स्पीड से वो चला रहा था, 50 की स्पीड से चला रहा था, so simply we can say, but it doesn't means that it has some direction, so that's why it is a scalar quantity. But in case of vector quantity, what happen, like measure by magnitude as well as direction both. Okay, like displacement, velocity, force, force equals to mass into acceleration. So acceleration is vector quantity, so that's why force is a vector quantity. Like velocity एक डायरेक्शन का पता चलता है, so इसीलिए velocity क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है. Again displacement is a vector quantity. Okay, अगर रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो देखो, in case of scalar quantity we need to write the symbolic representation only. But in case of vector quantity, we have to put a arrow sign in above this representable value. Okay, like हमें अगर displacement को represent करना है तो d के ऊपर this arrow, and velocity को represent करना है तो v के ऊपर this value, again force के ऊपर this value. तो इसे हम कहेंगे ये scalar quantity है. Okay, okay बच्चों, so let's talk about the distance and displacement now. Listen, distance is like actual path covered from initial point to the final point.
सपोज टू भी आप घर जाते हैं स्कूल से, तो स्कूल से जो वे होता है ना, आपके घर का रास्ता जो बना हुआ है, वो रास्ता कहलाएगा, एक डिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है ना। लेकिन अगर बात करें डिस्प्लेसमेंट की, इट इज द लिस्ट वैल्यू, और वी कैन से दैट शॉर्टेस्ट वैल्यू इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। तो ये क्या होता है, एक्चुअल पाथ होता है, कवर्ड करता है जो फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, और डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू द फाइनल पॉइंट, है ना, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। और डिस्टेंस क्या होता है, स्केलर क्वांटिटी होता है, लेकिन वेक्टर क्या होता है, सॉरी डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है, क्योंकि इसके इट हैज डायरेक्शन, है ना। डिस्प्लेसमेंट में डायरेक्शन होते हैं, पता चलता है डायरेक्शन का, इसलिए ये क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है। देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, एंड कि डिस्टेंस इट रिमेन्स पॉजिटिव एंड कांट बी जीरो, बट इन केस ऑफ डिस्प्लेसमेंट इट कैन बी इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है, और इट कैन बी जीरो और निगेटिव भी हो सकता है। हाउ, आई एम जस्ट टेलिंग यू हाउ। लाइक सपोज टू बी यू कैन टेक एग्जाम्पल ऑफ दिस सर्किल। अगर आपने यहाँ से स्टार्ट किया चलने को, और फिर यहाँ चलते चलते इस डायरेक्शन में आपने यहाँ तक पहुंचा, तो आपने डिस्टेंस कितना कवर किया, ये सपोज टू बी 5 किलोमीटर है, तो आपने 5 किलोमीटर कवर किया। लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट पीक की बात करें, आपने ए से स्टार्ट किया था, अगेन यू हैव रिच्ड टू द ए, सो डिस्प्लेसमेंट वुड बी जीरो, है ना, क्योंकि आपको पता है डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, लिस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट, बट इन केस ऑफ डिस्टेंस इट इज 5 किलोमीटर, है ना। तो डिस्प्लेसमेंट जीरो होता है, लेकिन डिस्टेंस क्या होता है, जीरो नहीं हो सकता, एंड इट हैज सम वैल्यू। अब इस फिगर में देख लेते हैं कि देखो, अगर ये लिस्ट डिस्टेंस की बात करें, डिस्प्लेसमेंट ये 4 किलोमीटर है, अगर डिस्टेंस की बात करें तो ये आपका ये पाथ हो गया जो कि 7 किलोमीटर है ना। तो ये था डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। नाउ आई एम गिविंग यू सम न्यूमेरिकल्स एग्जांपल टू